Now see, this is what we can say circuit diagram for NOT gate. Okay, to understand this circuit diagram, just see when the switch is in off state, means this is open, the circuit is not closed, this is open, then the current will flow from this path and the circuit will be completed like this. So this will make complete the circuit and the bulb will glow when the switch is in off state. So the path of the current will be like this. The circuit is closed and the bulb will glow. But when the switch is turned on, means now this path is available for current to flow. What happens? There is the property of current. The current always tries to take its shortest route. तो जहां पर रेजिस्टेंस लो होती है उस रेजिस्टेंस से करंट जो है, हालांकि फिजिक्स का टॉपिक है, तो इन दिस केस द करंट विल चूज दिस पाथ एंड नॉट दिस. तो ये जो पाथ बनेगा, नाउ व्हेन दिस स्विच इज इन ऑन स्टेट, आई मीन कि ये 1 है, तो ये ऐसे करके करंट फ्लो करेगा. rather than flowing through the bulb, the current will pass through this circuit switch and the bulb is not going to glow, which will represent a 0. Okay, understood? Shall I move further? Am I audible clearly to all? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any questions regarding this? No, sir. Now see, one more type of diagrams that we may be asked in the examinations using these basic gates, and we say these are logic circuit diagrams. Logic circuit diagram can be drawn for any Boolean expression. Say this is the Boolean expression, or say, can you read this expression? Yes, sir. कोई भी एक पढ़ के मेरे को बता दीजिए. Sir, F A B equals to A dash B plus B C dash. Okay, so this is an expression, Boolean expression in two variables A and B, and the expression is A bar B plus B C bar. We have to draw a logic circuit diagram. Switch circuit diagram अलग हो गया चीज, और logic circuit diagram कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ. लेकिन we have two variables, so you can draw two lines here, A and B. Fine. Now ये है A bar B. तो आप for getting A bar, which gate you will use? Not NOT. तो देखिए, from here you take A and apply a NOT gate here. So what you will get here? A dash. Is it okay? Yes, sir. Now the second thing is B.
and these both A dash and B are connected using dot. By A dash B, you can say A dash dot B. Okay. Yes, sir. Which gate I should use for A dash dot B? Out of these three basic gates, Gate. And gate. AND. तो मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो AND गेट आपने B यहां से लिया, ठीक है. So now you have A dash and B, and you applied here an AND gate. तो AND गेट क्या करता है कि जो भी उसके दो इनपुट हैं उनको लॉजिकली मल्टीप्लाई करता है. ये आपका B. Now similarly for BC dash, what you will do, take B from here, sorry C तो ऐसा कर लेता हूँ, अभी C मैंने लिया नहीं है ना. AB dash. AB डैश ले लेते हैं, ठीक है. तो B डैश मुझे चाहिए, तो मैंने ऐसे करके इस पे B पे एक नॉट अप्लाई किया और A यहां से लेके इतना सही है. समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Now both of these A dash B and AB dash ये ऐड हो रहे हैं, Or gate. तो इन पे और गेट. और गेट लगेगा, ठीक है. तो ये आपने एक इस पे और अप्लाई कर दिया. तो here you will get your result F. क्लियर है बेटा? बताओ. Yes, sir. So it is quite easy to make a logic circuit diagram for a given Boolean expression actually. Yes, sir. ये आपकी एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल्स में हो सकती है, 4 वेरिएबल्स में हो सकती है, कितने में भी हो सकती है. And accordingly, what you need to do, you just draw 3 or 4 lines as per the number of variables. Clear? तो अभी ये चीज समझ में आ गई आपके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. अभी मैं 3 वेरिएबल्स में और आपको बता देता हूँ, ठीक है. जैसे मैं कह रहा था ए बी सी इक्वल्स टू ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार, मान लीजिए ऐसे, ठीक है. तो व्हाट यू डू, ड्रॉ 3 लाइन्स. A, B and C. First expression A bar B C, so A bar B and C, and apply all these to an end. ये A bar B C हो गया. Similarly A B C bar A B C dash, so C dash and A B dash C, A B dash C. और
ये तीनों आपका क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। F. These are 3 AND gates, OR gate and 3 NOT gates. So this is an equivalent logic circuit diagram for this. So the question may be asked in 2 ways. And what are these 2 ways? The first way, you are given this expression and you are asked to draw this logic circuit diagram. And the second way can be you are given a logic circuit diagram and asked to write the Boolean expression for that. समझ में आ रही है बात आपके? ओके सर। Yes, sir. तो अभी is this clear to all of you? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अच्छा, अब now I am going to draw a logic circuit diagram. What you have to do, you have to write the expression for that. देखिए, तो आपको f के लिए बताना है क्या होगा एक्सप्रेशन, f इक्वल्स टू क्या होगा ये बताना है। बताइए। सर इसमें एक्सपोनेंट चढ़ सकती है? एक्सपोनेंट पावर, यस सर। पावर की जरूरत क्या है इसमें? सर इसका a डैश b डैश ब्रैकेट में a डैश प्लस b आ रहा है। सही है वैसे a डैश प्लस b Sir. ब्रैकेट में सब ब्रैकेट Sir, में a प्लस ए डैश ब्रैकेट में ए डैश। अच्छा चलिए, सर ठीक है, ओके। आप ये देखिए, आई हैव टेकन a from here and it is passing through a NOT gate, so I will get a dash, ठीक है? And this is b, so you will get a dash plus b here, a dash plus b, okay? यस सर। Now from here I have taken, तो ये a ही मान लीजिए इसको, ठीक है? Because यहाँ a ही तो है। सर। हाँ, yes, यस सर समझ में आ रहा है। and from here I have taken b, तो यहाँ you will get b dash, here you will get a Yes, sir. dot b dash, यहाँ पे मिल गया। यस सर। अब यहाँ फाइनली यू विल गेट व्हाट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब है a बार प्लस b डॉट a b बार। तो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन a बार प्लस b डॉट a b बार। गॉट इट? यस सर। सर एनी डाउट, एनीबॉडी? नो सर। ओके फाइन। हर्षवर्धन है या नहीं है? सर है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखो, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के लिए लॉजिक सर्किट डायग्राम
और लॉजिक सर्किट डायग्राम के लिए एक्सप्रेशन ये आप आई थिंक नाउ यू कैन राइट। अभी मैं ये बता रहा हूं आपको कि हाउ यू कैन राइट अ ट्रुथ टेबल फॉर एनी बूलियन एक्सप्रेशन। ट्रुथ टेबल बनाना किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के लिए। जैसे लेट मी टेक दिस f equals to ab bar plus a bar b. Suppose I am asked to draw a truth table for this. So how many inputs I have? 4. Sir, 4. 4 के Power तो Sir, A, B, A dash, B dash. These are two inputs, A, B. A Sir, and जितने A input होंगे सर only two 2 by 3 inputs I have, na? A Yes, sir. and B. And because I have two inputs only, then there will be 4 combinations of 0 and 1. I wrote this. Now for drawing this A B bar, I need B bar. तो B बार मैंने यहाँ पे एक कॉलम ड्रॉ किया। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ B, यू कैन राइट द वैल्यूज ऑफ B बार हियर। क्या होंगी? 1 0 1 0. 1 0 1 0 because B is 0. 0, B bar will be 1, B is 1, B bar is 0 0 1 1 0. Clear? Now what do you need? A B bar यानी 1 1 0 प्रोडक्ट अच्छा जी product of these two columns A and B bar. So what will be the product? 0 dot 1 will give you 0. 0. 0 dot 0 0. 0. 0. 1 dot 1 1 1. and 1 dot 0. 0. 0. Okay? Similarly, you need A bar also for this A bar B. So A bar will be 1 1 0 0 from here. Clear? Correct? And A bar B 0 1 1 0. Sorry, sir. हो गया 1 0 0 1 1 1 and 0 0 1. and 0 1 0. Clear? Now finally we have to write A bar A B bar plus A bar B. Yani the sum of these two columns 0 plus 0 0 0 1 1 1 1 0 है ना? तो Yes, दिस sir. इज द फाइनल रिजल्ट आपका जिसको आप F कह रहे हैं। F इक्वल्स टू क्लियर। तो दिस वाज a truth table for this expression which has two variables. अभी I am giving you a 3 variable expression। तो मुझे केवल देखो ये जो फाइनल कॉलम है ना हमारा, ये वाला फाइनल कॉलम, केवल Yes, sir. इसकी वैल्यूज मुझे बताएंगे कि क्या आ रही है। मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 3 वेरिएबल्स में एंड यू हैव टू टेल ओनली मी कि f जो है उसकी वैल्यू 0 1 1 0 आ रही है। ठीक है, ऐसे बताना है। तो Okay. देखिए मैं लिखता हूं कहेगा f इक्वल्स टू a b c बार प्लस a बार b बार c प्लस a b बार c प्लस a b c है ना? These three variable expression और कॉम्बिनेशंस आपके कितने बनेंगे? 8. सर 8 9 8. कॉम्बिनेशन सर 8 बनेंगे सर 2 की पावर n से। 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नंबर 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1. These will be 8 combinations. और अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये 8 मैंने कैसे बनाए, तो फॉर द टाइम बीइंग केवल आप ये समझ लीजिए, पहले कॉलम में क्योंकि हमें 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं एंड हाफ ऑफ 8 इज 4, तो आपको क्या करना है, पहले कॉलम में 4 zeros एंड 4 ones, फिर 4 का आधा 2, तो सेकंड रो में सेकंड कॉलम में 2 0 2 1 2 0 2 1, और फिर फाइनली 2 का आधा 1, तो 1 0 1 1 1 0 1 1, ऐसे बना सकते है ना। लेकिन देखो ये जो सीक्वेंस है ना वैल्यूज का, यानी अगर मैं ये कहूं 1 0 1 यानी ये, तो ये जो बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी नंबर है, बिकॉज हमें मालूम है बाइनरी नंबर्स जो है 0 1 में लिखे जाते हैं, तो दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 5 in decimal number system. In our usual decimal number system which we study 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसमें 10 डिजिट्स होती हैं, उस नंबर सिस्टम में 5 लिखा जाएगा 1 0 1 को। वो कैसे लिखा जाएगा हम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस वैल्यूज की है ना, ये सीक्वेंस इस क्रम में है 0 1 2 3 4 5 6 and 7. तो अब मुझे केवल F वाला कॉलम बता दीजिए आप, फाइनल क्या आ रहा है सर बताएं। हाँ बताओ। यस सर बताएं। हाँ बताइए सर 0 0 1 1 एक, कोई भी एक 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड सर 0 1 1 0 1 1 1 सर 1 1 1 है। तो सही है। 1 1 1 आ रहा है लास्ट में। ये वाला 1 तो आपका सही आ रहा है ना, और ये वाला 1 सही आ रहा है, और लास्ट वाला 1 भी सही आ रहा है। एक 1 और आएगा अभी सर, लास्ट 3 में आएगा नीचे से ऊपर की तरफ। एक 1 और आएगा, वो आएगा यहाँ पर 6 नंबर पे। तो नंबर इस जगह आएगा, स्टॉप है यहाँ पर 1 0 1 पे। मैं इसका तरीका आपको देखो, वैसे अगर आप करोगे तो पहले आपको सी बार निकालना पड़ेगा, फिर ए बी सी बार को मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाना पड़ेगा, ऐसे चारों एक्सप्रेशंस के लिए 4 कॉलम आएंगे, फिर उनको ऐड करोगे, है ना। तो दिस विल बी अ वेरी हेक्टिक टास्क, और इसमें अगर आपने कहीं भी गलती कर दी किसी में, तो पूरा रिजल्ट आपका इफेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिंपल सी आपको एक बात बता दूं, इस तरह के केस में जब एक्सप्रेशन ऐसे लिखी हो ना, तो जैसे ए बी सी बार लिखा है, तो जहां बार लगाए वहां 0 रखिए, और जहां बार नहीं लगाए वहां 1 रखिए, तो ये हो गया 1 1 0। तो ABC का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है 1 1 0, तो आप ये कॉम्बिनेशन देखें 1 1 0 यहाँ है, तो इस जगह आपने 1 रखना है। दूसरा आपका है A डैश B डैश C, तो ये क्या बनेगा 0 0 0 1 1 0 0 1। तो 0 0 1 पे मैंने 1 रखा है, सही है। तीसरा है A B बार C, ये क्या बनेगा 1 0 1 1 0 1, तो ये यहाँ पे आ गया 1 0 1, सही है। और फाइनली A B C क्या बनेगा 1 1 1 तो ये आपके 4 जगह 1 आ गए। अब जो जगह बचा है खाली, उनमें आप यू विल प्लेस जीरोस,
फाइन। यस सर। तो आप अभी, हालांकि ऐसा नहीं है कि दिस रूल विल अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, उसके लिए आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। वैसे अभी इस स्टाइल में अगर कोई लिखी हो एक्सप्रेशन, इसको वैसे हम एक जो टेक्निकल लैंग्वेज में कंप्यूटर में कहते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो व्हेन द एक्सप्रेशन इज इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये रूल आपका काम करता है, हर जगह काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट टर्म्स का सम। आप देख रहे हैं कि यहां ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इन टर्म्स में, चार टर्म्स में आपको डॉट के अलावा कुछ नहीं है। यानी इसमें जो वेरिएबल्स कनेक्टेड हैं इन चारों टर्म्स में, वो आपस में डॉट से कनेक्टेड है। एंड डॉट हमारा क्या है? प्रोडक्ट। तो इसलिए ये सारी टर्म्स प्रोडक्ट टर्म है, और इन सारी प्रोडक्ट टर्म्स का क्या हो रहा है? ये सम हो रहा है। तो इसलिए ये फॉर्मेट जो कहलाती है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेट कहलाती है। हालांकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअली योर सिलेबस राइट नाउ, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको इस चीज को समझा दिया है, समझे? तो ऐसे अगर इफ द एक्सप्रेशन इज इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अगर नहीं है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, so you can change any expression in sum of product form also, but you should know the postulates of Boolean algebra. कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में रूल्स होते हैं ना कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लाइक दिस वी हैव सम So we have some laws in Boolean algebra also. So using that those laws, you can convert any time. You can convert any expression in sum of product form or product of sum form. ठीक है? तो अभी मैंने जो एक्सप्रेशन ये जो बताया है, क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि you are given any Boolean expression and asked to write a truth table for that. और ये भी हो सकता है कि आपको एक एक्सप्रेशन, एक ट्रुथ टेबल दी हो एंड यू आर आस्क्ड टू राइट अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस। जैसे अगर ये ट्रुथ टेबल ही दी हुई होती है आपको, ये वाली, और आपसे कहा जाता एफ के लिए एक्सप्रेशन लिखिए, तो f के लिए एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप इन वन को सेलेक्ट कर लेते चारों, और इनके अकॉर्डिंग आप इनपुट्स को देखते ही, तो उन इनपुट कॉम्बिनेशंस की टर्म आप बना लेते कि ये a बार b बार c, ये लिख दिया। फिर दूसरा वन लिया a b बार c, तीसरा लिया a b c बार, और चौथा लिया ABC। तो ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल भी लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक फॉर टुडे इट इज एनफ फॉर यू एंड द टाइम इज रनिंग आउट हियर। तो आई थिंक दिस मेकिंग ट्रुथ टेबल्स एंड लॉजिक सर्किट डायग्राम विल बी क्लियर टू you